Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed about the Joule's law of heating, in which we have discussed that H is equal to VIT or H is equal to I square RT. And in which we have discussed that this is known as your Joule's law of heating effect, in which the heat released from an electrical appliances depends upon the amount of the current, share of the amount of current passing through the electric circuit, resistance of the conductor of conducting device, and third, how much time the electric current passes through the circuit. That will be known as about your heat, and this law is known as your Joule's law of heating effect. And as we are said that the heat is released when current is passing through the electrical appliances. What does it mean? Means some amount of the energy is used to release energy, and we do not get 100% work done by using the energy or the current. तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सिंगल भी मशीन नहीं है जो आपका 100% वर्क डन करेगी. Some amount of the energy will be lost in the form of that heat. Even that, उसके बावजूद भी, however, this Joule's law of heating effect have many practical applications. There are some electrical devices are there which are based on the heating effect of electric current, and that are having the useful work like your electrical gadgets, electrical kettle, heater, your toaster, electrical iron, etc. So these are completely based on the heating effect of the electric current, and they are having the highest resistance or maximum resistance, so that most of amount of the heat current will be resisted by them, and that current will use to heat that appliances, and that heat will be evolved, and that heat can be used to do some amount of the work, useful work, right? तो आपके कौन कौन से गैजेट बताए, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल आयरन बताई है, इलेक्ट्रिकल कैटल बताई है, इलेक्ट्रिक वर्ड यूज कर लेना सबके साथ में. आपका इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, और इवन आपके जो हीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, दैट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. What does it mean? What does it mean? Means these are the appliances which plays an important role by using the heating effect of the electric current. जो हीट वेस्ट के फॉर्म में यूज हुई थी, उस हीट को यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज किया गया. आयरन से क्लोथिंग के, चलो आयरन हो सकता है, केटल यू कैन हीट द वाटर, इलेक्ट्रिकल गीजर में आप वाटर को गर्म कर सकते हो, टोस्टर में यू कैन मेक द टोस्ट, एंड इलेक्ट्रिकल हीटर which you use to heat your room, increase the temperature. So sometime when there is a heating effect of electric current is there, the temperature of electric circuit increases. इस हीटिंग की वजह से क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है, एंड द वायर्स प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट विल मेल्ट, and there will be loss of the electrical appliances are taking place. So there are the main two important application of the Joule's law of heating effect. First is that the Joule's law of heating effect is having it also produces light. इन काम के अलावा ये क्या करता है, also produces light. What does it mean? For example, we are having the electric bulb. That electric bulb like this, and a very thin wire is present here, and that thin wire is made up of that material which are having the high melting point. This filament should have high melting point. What does it mean? When the current is passing through the electric bulb, that electric current is used to heat the filament present in the bulb.
If it is having the low melting point, it will melt and it will break and there will be no heat and the light will be produced. Okay. जब इलेक्ट्रिक बल्ब में से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो फिलामेंट उसके अंदर होता है, that will start become hot due to temperature, and when it will become super hot, it will start emitting light, and the glass present around the filament. इसके जो चारों तरफ आपका जो ग्लास की कवरिंग होती है, that should be a light resistant, कि उसमें से लाइट बाहर निकले और आपकी सिंपल वो क्या करे, फैल के चारों तरफ से निकल जाए. So what does it mean? We can say that the bulbs are usually thermally isolated so that the heat will not be released from the glass of the electric bulb. दोबारा से सुनिए, जो है it also produces the light. That for example electric bulb, the electric bulb is having a filament. That filament should having the high melting point. क्यों high melting point होना चाहिए? So that when the electric current passes through the filament, it should not melt. और जब high melting point होगा तो it will not melt, and it is made up of a metal that is known as tungsten, which are having the melting point around 3300 degrees Celsius. Right? तो जो इसके अंदर फिलामेंट है, जो ब्राउन से कलर का आपको दिखाई देता है, जो स्पाइरल किया हुआ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन का बना होता है, विच इज हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज अराउंड आपका 3400 के आसपास होता है. एंड दैट ग्लास विच इज कवर्ड दैट फिलामेंट, इट इज थर्मली आइसोलेटेड. Thermally isolated means all the temperature, when the temperature of this bulb increases, that heat will not come out from that glass. If it will be come out from that glass, the temperature of it will become less, and after that what will happen? The filament will not glow. इसलिए जो ग्लास बल्ब है बाहर का, जो उसका ग्लास, that should be thermally isolated and it allow the heat to light to pass through that. उसको अपने अंदर से क्या पास करने देना पड़ेगा? लाइट पास करने देना पड़ेगा. एंड इट इज फिल्ड विद द टू गैसेस. इनर्ट गैसेस होती है, दो गैसेस से फिल होता है. वन इज नोन एज योर नाइट्रोजन एंड सेकंड वन इज नोन एज द आर्गन. अंडरस्टैंड? तो दो गैसेस इसके अंदर होते हैं, वन इज नाइट्रोजन एंड अनदर इज आर्गन, सो दैट द लाइफ ऑफ दिस फिलामेंट विल बिकम मैक्सिमम. यदि ये इसके अंदर फिल नहीं होगी तो आपका जो बल्ब है वो आपका क्या होगा, ज्यादा लाइफ तक नहीं चलेगा, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द रिएक्शन बिटवीन द हीट एंड लाइट, हीट विद योर इलेक्ट्रिकल फिलामेंट. ओके, तो आपके कौन सी गैसें भरी होंगी बल्ब के अंदर? नाइट्रोजन एंड द आर्गन विच इज इनर्ट इन द नेचर, सो दैट द लाइफ ऑफ द फिलामेंट विल बी प्रोलॉन्ग्ड एंड मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर्स एज द हीट. जो ज्यादा से ज्यादा लाइट वो होगी, करंट, वो किसके फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में जाएगा. एंड सम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और हीट दैट विल चेंजेस इनटू द लाइट व्हिच कैन बी सीन व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब एट योर होम. जब आप अपने घरों पे इलेक्ट्रिक बल्ब को जैसे स्विच ऑन करते हो तो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, और कई ऐसा होता है जो धीरे धीरे आपकी क्या करते हैं, वैल्यू को बढ़ाता है. तो उस टाइम में क्या है, जो आपका ये फिलामेंट है ये आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, और जब बढ़ेगा, जस्ट सेकंड, inert gases are those gases which do not react easily with the other substances. Okay, उनको inert gases कहते हैं. inert का मतलब है नॉन रिएक्टिव गैसेस. तो जो ये फिलामेंट है जिसमें मैंने बताया कि आपका most of the power consumed by filament appears as heat, but a small portion of it will be changed into the light. So that will be the Joule's law of heating effect. Understand? That is about your first application of your Joule's law of heating effect. That will be in the electric bulb. Second one is that in case of another application is your fuse. Yes, second application is your in the fuse. All of you have seen the fuse at your home, that is just like this,
हैविंग अ पोर्सलिन केस, पोर्सलिन का केस होता है जिसके अंदर से एक आपकी वायर ऐसे पास होके जाती है. दैट वायर इज मेड अप ऑफ मेटल और एलॉय. या तो वो मेटल की बनी होगी या किसकी बनी होगी, एलॉय की बनी होगी. कंडीशन इज दैट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. उसमें हमने क्या कहा था, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. इसमें हम क्या कह रहे हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए? Yes, it should have the low melting point because these fuse are connected in series. किसमें कनेक्ट किए जाते हैं? सीरीज में. कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है सीरीज में. एंड अ वायर ऑफ द मेटल और द एलॉय, दैट मेटल विल बी ऑफ कॉपर, tin, lead और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. मोस्टली जो मेटल यूज किया जाता है वो कौन सा था? कॉपर, टिन, लेड एंड एल्यूमिनियम. एंड एन एलॉय दैट इज ऑफ योर टिन एंड लेड, and the name of the alloy is your solder. That is also commonly used for making a fuse wire, and that fuse wire is connected in the porcelain case, which are having your wire connected, and this will be connected in the socket which are fixed near your क्या बोलेंगे, so electrical meters or the connections from where it are coming, and these are connected in the series. When अब ये कनेक्ट क्यों किए जाते हैं सीरीज में? When high current, sometimes there will be high fluctuation is there, high current is passing through the electrical circuit, the wire present in the fuse melt. अब ये जब मेल्ट हो जाएगी तो इट विल ब्रेक. अंडरस्टैंड? जैसे मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक and there will be no flow of the current will be there, and the electrical appliances which are connected with this fuse, that will be safe. राइट? दोबारा सुनिए इसको कि जब आपका कई बार अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द फ्यूज व्हिच इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द सीरीज, द वायर प्रेजेंट इन दैट हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट मेल्ट एंड ब्रेक. मेल्ट हो जाएगी एक जगह से एंड इट विल ब्रेक, एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द वायर द current of the electric flow will not be there, and due to that the electrical appliances will remain safe. If they will remain same, तो आप उसकी दोबारा से क्या करते हैं, वायर को क्या कर सकते हैं, दोबारा से चेंज कर सकते हैं. एंड these are connected. Why these are not connected in the parallel? क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जितने भी अप्लायंसेज है they will be damaged due to the highly current passing through that. कंडीशन फ्यूज वायर की क्या होनी चाहिए? They should have the low melting point. अब इसी तरह मान लो मैंने वायर ले लिया कि टंगस्टन की वायर ले ली जो फिलामेंट बनाने में यूज की थी, जिसका आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका 3300 अराउंड 3400 के आसपास है, और आपका जितना मर्जी करंट पास हो जाए दैट विल नॉट ब्रेक, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो सारे के सारे जल जाएंगे, क्योंकि वो तो मेल्ट होगी, करंट आपका कंटिन्यूसली पास होता रहेगा. और जब आपका करंट कंटिन्यूसली पास होगा तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उसके साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं उनमें से क्या होगा, आपका अप्लायंसेस क्या जाएंगे, सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे. इसीलिए जो वायर इसके अंदर यूज की जाती है वो किसकी होनी चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, चाहे कॉपर हो, चाहे टिन हो, चाहे लेड हो या एल्यूमिनियम हो. और आप मोस्टली एलॉय भी यूज कर सकते हो टिन एंड लेड का, दैट इज नोन एज योर सोल्डर. तो जो फ्यूज वायर है तो ये मैंने बताया, तो दिस फ्यूज आर यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज. डोमेस्टिक पर्पज के लिए घर में मोस्टली यूज किए जाते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर के यूज किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंजप्शन ऑफ द करंट थ्रू दैट फ्यूज. कि किस लाइन में आपका एसी लगा हुआ है, उसमें कितने वायर का चाहिए आपको, किसमें आपका वो लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है उसमें कितना चाहिए, जिसमें आपके सिर्फ बल्ब और फैंस वगैरह तो वहाँ पे अलग आपको चाहिएगा. तो ये जो फ्यूज होते हैं इनकी रेटिंग अपने अलग अलग होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट,
हमारे पास जो 220 वोल्ट की वोल्टेज है यही आती है हमारे घरों में जनरली। और इसके बाद हम कहते हैं कि 1000 वोल्ट की मैंने इलेक्ट्रिकल प्रेस यूज कर दी। तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट P इज इक्वल टू VI। आपके पास ये 1000 है और ये आपके पास 220 है, तो I आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो I विल बी अराउंड योर 4.54 एम्पियर। तो क्या आप इसमें 2 एम्पियर का या 3 एम्पियर का कोई फ्यूज लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, because it should be more than that of the current passing through the electrical circuit. If we will use the rating of the 3 ampere or 2 ampere, that it will not work, or if there will be damage of the electrical appliances. तो मुझे यहाँ पे कितने एम्पियर का लगाना पड़ेगा? मुझे इस 5 एम्पियर का क्या लगाना पड़ेगा? फ्यूज लगाना पड़ेगा। और अब एक ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें आपके एक ही कमरे में आपका वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेस भी यूज कर रहे हो आप, और उसमें आप AC भी यूज कर रहे हो। उस टाइम पे आप क्या करोगे कि आप उससे जितना करंट उसमें से फ्लो होगा उससे ज्यादा का क्या करोगे, आप लगाओगे उसमें क्या आपका फ्यूज लगाओगे। इट मे बी योर 10 एम्पियर और इट मे बी योर 20 एम्पियर। दैट इज अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। Is there any problem related to that? Tell me. Or otherwise, the last topic, very small topic which you have discussed earlier in the 9th class, we will discuss that. I think no one is having the problem. Today, the strength of the class is right, कुछ है. So now we will discuss about the electric power. Yes. मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर लिखा, इसको लगा कि मैं ना एक टॉपिक छोड़ दी थी। इलेक्ट्रिक पावर, as all of you know that, is the rate of doing work. 9th class में आप पढ़ के आए, rate of doing work is called power. Right? So that electric power, that P is known as VI. हमने भी ये पढ़ा. According to Ohm's law, V is equal to IR. Put this value here, means put the value of 2 in equation 1. So P is equal to I square R. That is your third equation. Right? लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। मीन्स यदि हमारे पास पावर है, करंट है, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट। और I is equal to V upon में R. According to Ohm's law, it is also there. That is the equation 4. Put this in this equation, first equation, then P is equal to V square upon में R. Right? So there are the two things that will be your P is equal to I square R and P is equal to V square upon में R. So rate of doing work, see how much amount of the work is done in the given time, that is known as your power. And if we have to calculate the SI unit of that, this unit is your watt. But that is a smaller unit which is for your electric bulb or the very small appliances के लिए आप इसको use करते हो, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल टोस्टर हो गया जिसकी भी 500-600 वोल्ट के आसपास होती है। जो आप लार्ज स्केल पे यूज करोगे दैट विल बी योर किलोवाट। राइट? तो वहां पे आप कौन सी यूनिट करोगे? किलोवाट। अब इफ आई हैव टू डिफाइन 1 वॉट, दैट विल बी इक्वल टू 1 V into 1 एम्पियर। में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर से यदि आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है and the current passing through the electric circuit is the 1 ampere, then we will say that it will be equal to 1 watt. और 1000 watt का करना होगा तो that will be 1 kilowatt hour. अब देखो, power is equal to rate of doing work upon में time. Right? Rate of doing work means power or energy divided by में time. What does it mean? Rate of doing work divided by में time, और इसको work done को हम energy के इक्वल मानते हैं। We have discussed about the kinetic energy and the potential energy that is there. So E is equal to P into T. Right? We have discussed also that. So P किसके बराबर है? वोट के बराबर है।
ये किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है, राइट। तो एनर्जी विल बी इन द वॉट पर सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू जूल। किसके बराबर हो जाएगी वो आपकी, जूल के बराबर हो जाएगी। अब मुझे 1 किलोवाट आवर निकालना है। If I have to calculate the 1 kilowatt hour, how much amount of the energy is used in 1 kilowatt hour? 1 kilowatt, 1000 watts. Hours में how much seconds are there? 3600 seconds. So watt second is equal to किसके बराबर होता है, जूल के बराबर. So we will easily calculate the how much amount of the energy will be in the joule. So there is 6 or 2 or 3 5 1 2 3 4 5 जूल या वॉट सेकंड लिख सकते हैं. अब इसको निकालो 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6 जूल. तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी यूज होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट. कि जब आप 1 घंटे तक किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाते हो और उसके अंदर 1000 वॉट की एनर्जी यूज होती है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, दैट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड दैट कैन बी रेफर्ड टू एज दी 1 यूनिट. तो हम उसको किससे डिफाइन करते हैं, 1 यूनिट से डिफाइन करते हैं, राइट. There will be one very simple numerical related to that is there. An electric bulb is connected to voltage 220 volt. 220 volt के साथ कनेक्ट किया गया. The current passing through the circuit is 0.5 ampere. What will be the power of that? Power का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया, P is equal to V into I. आप सिंपली रखिए 220 into 5/10 रखिए, तो कितने 100 वॉट का हो गया आपका, 110 वॉट का क्या हो गया आपका पावर कंज्यूम हो रही है उसके अंदर, राइट. सेकंड दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर हैविंग द 400 वाट, पी कितना दिया, 400 वाट. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी व्हेन इट विल बी ऑपरेट फॉर 30 days, फॉर हाउ मेनी, और 8 hours पर डे, टाइम है 8 hours पर डे. और उसके बाद दिया हुआ है रेट दिया हुआ है 3 रुपीज 3.0 रुपीज पर किलोवाट आवर. एज आप यू नो दैट इज इक्वल टू E by T. T इज इक्वल टू P इंटू T. P कितना दिया आपका 400 वाट. इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, ये आवर्स में या वाट में, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो और इनटू कितना कर दो 8 आवर्स. सिंपली 32 डिवाइडेड बाय में 10, 3.2 किलोवाट आवर. ये कितने दिन की है, सिर्फ 1 दिन की. फॉर 30 days 3.2 इंटू 30 और कितने रुपीज है पर डे, 3 रुपीज. So you will calculate how much is the amount of the energy consumed or the rupees consumed when we are doing an electrical appliance having the power of 400 volts, and 8 hours per day it will be there, and the rate of the unit is here 3 rupees per kilowatt hour per unit. So power is equal to E by T. So E is equal to P into T. 400 divided by 1000, क्योंकि ये वाट में, ये किलोवाट में करना है, ये आवर्स में होगा तो किलोवाट आवर निकल गया. 1 दिन के लिए निकला था, 30 days के लिए निकाल लो और फिर उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करो. यू विल कैलकुलेट द हाउ मच रुपीज यू हैव टू पे फॉर दैट. दैट इज अबाउट योर चैप्टर, एंड टुमारो आई विल सेंड यू सम numericals related to electrical power and the Taylor and the series combination. रिकॉर्डिंग बंद कर. ये तो Taylor और सीरीज कॉम्बिनेशन के हम न्यूमेरिकल्स